speaking at this occasion. It is your second day of induction? Okay. Yes, sir. So you must be like got introduction. So let us start with the topic. I think it is interesting and required topic for all of you. How to control mind and will with these. So I have a question for all of you. All of many of your students are able to plan for your day, for your week, for your month, for your year, and achieve that as per the plan. आप में से कौन अपना शेड्यूल बनाते हैं? बनाते कौन कौन है वैसे आप में से? 30 to 40% बनाते हैं. And how you are able to achieve 100%? 100%. Okay. 90%. Okay. 80%. 50%. Okay. So, what is the reason we are not able to achieve 100%? What are the difficulties we face? Can anybody tell us? Procrastination. Okay. Any other? You raise your hand. Time mismanagement. Okay. Any other? Distraction. Okay. So, according to research, the two things which stop us to follow the schedule is one is procrastination, second is distraction. You got it right, 2 points. These are two major reasons why we are not able to follow our schedule. Procrastination and Distractions. and what is the reason of distraction? Your mind. Because you are not able to control your mind. So distraction is not just other attraction. You are attracted towards something other than what is required. That is distraction. So in this topic we will be trying to understand how mind works, what is mind, and what is the meaning of controlling the mind. Because जो हम माइंड कंट्रोल या यूट्यूब या कहीं भी समझते हैं उसमें भगवद गीता का पर्सपेक्टिव ऐड नहीं होता. Sometimes it is missing. So we're not able to got it right. So सबसे पहले what is mind? First I have cleared that we are need to control our mind to get free from distraction. That is our need. Okay? And also for procrastination also. For distraction and procrastination, both are happening due to mind. Uncontrolled mind. So, you agree you have mind? Yes, sir. No, sir. You agree that you should control your mind? Yes, sir. So, what is mind? If you want to control something, you should know what is mind. You tell me what is mind. Organism. Organ. Any guess? No negative. You are now selected in replying. Organ. No negative marking will be done. So you can guess. CPU. Central Processing Unit. What's your name? हर्ष. कोई और कुछ कोई एक स्टूडेंट बोलना चाहेगा? Organ है माइंड मन क्या होता है? बताइए जो आपके मन में बताइए मन क्या होता है? Hesitation खोजिए. One that can think to any extent. What can think? One that can think to any extent. Think to any extent. कुछ भी सोच सकता है. Okay. Constant desire. Okay. Very good. So you are telling a function or features. What is mind? Organ है. Complication? Organ है. Can someone close one get it and tell us? Organ. Combination of? We are not able to get it. Organ है You are mind. able to get it? हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं. किसी बुलंद आवाज को बोलना होगा.
बुद्धि चिंता अहंकार. Okay. Okay. Very good. Very good. Thank you. Thank you very much. It is a mix. So now we'll go. Next question. What does the mind do now? What does the mind do? मैं दोनों का आंसर मैं भी दूंगा. मैंने आपसे पूछा आपको मैं भी आंसर करूंगा. बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ मन करता क्या था? तभी तो कंट्रोल करेंगे ना. रेज योर हैंड. मन करता क्या है? Indulge in pleasure. Indulge in pleasure. Very good. Motivate and distract. Motivate भी करता है, demotivate भी करता है. Okay. Convert thoughts into action. Very good. Always desire. Anyone else? Overthinking. Okay. माइंड जो है जैसे सर ने बताया सीपीयू. तो सीपीयू तो हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है? अच्छा मन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर. पक्का? Yes sir. Sure. Yes sir. If you search on Google and type mind, what it show? It show brain. But we don't trust on Google 100%. Actually, brain is hardware, and it is used by the software called mind. Yes sir. Okay, like you have software in CD, you put it in hard disk. Hard disk is hardware, but the data it is subtle. It is like it is a software. इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म. सूक्ष्म मतलब जो कि दिखता नहीं. जैसे कि आप बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान, आप IIT में एंट्रेंस प्राप्त किए हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट कैन यू शो योर इंटेलिजेंस? नो, बिकॉज इट इज सटल. It is a function of our body, but we cannot show it. Understanding my point? तो मन क्या है? एक सॉफ्टवेयर. ओके? मन करता क्या है? हम आपने बताया, तो बहुत अच्छा पता है, डिजायर करता है ना? कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी सोच लेगा, है ना? कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी मोटिवेट करता है, कभी डिमोटिवेट करता है, बहुत कुछ करता है. बेसिकली भगवद गीता में बताया संकल्प विकल्प. अभी बोलेगा ये करना है, I have to do it. Next आ गया, leave it. This is the style of mind. Once you understand the features, function, style of mind, then you will be able to think how to control it. Otherwise, you will be frustrated every time. यार इतनी बार प्रयास किया, इतनी बार ट्राई किया, हो ही नहीं रहा. Sometimes people become so frustrated they like goes to alcohol and drugs because they are not able to overcome their bad habits, bad thoughts, and again they are addicted and they are come to same negative things which are they are afraid and they want to come out of this because of this mind. Okay. So these are function of mind according to Bhagavad Gita, according to scripture. These three things mind does. Thinking, feeling, and willing. When we talk about controlling the mind, it means we have to control these three things. We basically try to control only thinking, but emotion, feeling, and desire, willing, that also comes under mind. Basically, you try everything to fulfill your desire. आप रात को सोते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं रात को सपने में पूरी होती है ना? कुछ कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है या फिर कोई कुछ भी चाहता है, सपने पूरा हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो आपका माइंड कभी कभी फिजिकली कुछ इच्छा पूरी नहीं कर पाता, वो सपने में कर देता है. वो कभी किसी का तो कंट्रोल करने का मतलब है हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें,
अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, फीलिंग एंड हमारी इच्छाएं। और ये जो सर्कल है ये ऐसा क्यों है? सबसे आसान है थिंकिंग को कंट्रोल करना, उससे मुश्किल है फीलिंग को कंट्रोल करना, और सबसे मुश्किल है इच्छाओं को कंट्रोल करना। ठीक है? नो, अभी हम जो सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से अभी तक बड़े हुए, ग्रोन अप, सो डिड यू लर्न हाउ टू थिंक? Did you learn how to control your feeling? Did you learn about your desire? From where you get your desire actually? Whatever we see around us. Huh? Sir, whatever we see around us. Whatever we see Around us. around us, very good. From environment. Situation comes under environment. Situation, association. Basically, movies, books, and your friend circle. For example, advertisement. I6, I7, I8, you desire to get it. And for that desire, you have some feeling. And you some thinking. For example, emotion, happiness and distress is connected not with our requirement. हमारी ज़रूरतों से नहीं कनेक्टेड नहीं। सेकंड पर्सन के कितने नंबर आए, कौन सा मोबाइल है, वो हमको दिखा रहा है, वो हमको चिढ़ा रहा है, उससे हमारा डिजायर्स चूज हो रहा है। एक पति घर में आए और खाना खा रहे थे, तो पत्नी जी उनको खाना खिला रही थी। उनके पास 4 व्हीलर नहीं था, तो पड़ोसी ने 4 व्हीलर लिया। तो कैसे डिजायर आता है ना, जस्ट रिक्वायरमेंट का, और कैसे मतलब इट इज जस्ट एक मतलब ये ह्यूमर है ना, तो इससे तुम कुछ लर्न करेंगे। इसमें लड़का है लड़की कुछ व्यंग नहीं है ना, ऐसे कि तुम सोच रहे हैं ऐसा, दोनों पक्ष में ऐसा होता है। सो पत्नी बोलती कि खाना खिला रही है, और बच्चे से बोलते अरे पिंटू, पड़ोस में शर्मा जी गाड़ी लाए हैं। तो खाना खिलाई, उससे को तो नहीं बोली, अपने बेटे को बोले हाँ मम्मी आप खाना खाइए, आपको नहीं बोलेंगे। अरे पिंटू कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? i10। ये अपर मॉडल है, लोअर मॉडल है, सब पूछते हैं। फिर पति लास्ट होता क्या है, गाड़ी लेनी है? मैं कहा मैंने कब गाड़ी। तो ये जो डिजायर्स हमारे पास आती है आपके आसपास, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में किसको अच्छा लड़का बना जाता है, और मैं जब इंडियन कॉलेज में था तो मैं लकीली मैं हर साल 4-5 गोल्ड मेडल लेके आता था, थिएटर, मिमिक्री, डांस, हर एक्टिविटी। और तो लड़के जो लोग फेमस होते हैं, लोग सब वैसा ही बनना चाहते हैं, या जो बहुत रिच है, समझ, जो फेमस है, जिसको लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, हम वैसा ही बनना चाहते हैं, पैसे वाला, या किसी का गाड़ी, हम साइकिल में आ रहे हैं, हमारे तो वो डिजायर। जबकि हम यहाँ पे एजुकेशन लेने आए हैं और अपना चीज सीखने आए, उसके से हमको प्लेसमेंट हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम करने आए, लेकिन हम किसी और चीज में स्टक हो जाते हैं। एक चीज मैंने लर्न की थी कि whenever you want to do comparison, do it with yourself, ताकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्यों? बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताऊंगा। आपकी उम्र होगी 18 से 20 साल, and you have done your upbringing in different cities, different villages, under different parents, they have different natures, and you have different set of like environment or your lifestyle, standard of living, everything is different. So after 20 years, you are comparing with someone who is brought up totally differently from you, from 20 years, and you want to compare with himself. No. Just in one day you want to compare with him.
इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? तो सर कंप्लीट नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक लर्न, यू शुड टेक इंस्पिरेशन एंड यू शुड लर्न, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज माय लेवल, आई हैव टू अपडेट इट फ्रॉम टुडे, दैट इज माय टारगेट। अगर मेरे आज 10 नंबर आ रहे हैं तो मुझे 12 तक पहुंचना, ये हुआ कंपैरिजन। और किसी के 50 है तो आप 10 से 50 एक दिन में पहुंच। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। व्हेन यू वांट टू like you start comparing yourself, कहते हैं शेर को सवा से नहीं जाता। अगर आपका स्कूटर है तो बाइक वाला है, अगर आपका बाइक है तो बाइक का भी अच्छे से मॉडल है, फिर 4 व्हीलर वाला खड़ा है, 4 व्हीलर में भी मर्सिडीज है, उसके बाद फिर फरारी। कोई कंपैरिजन का कोई सीमा नहीं है। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो कैसे करना है? अभी आपका लेवल क्या है, उसके आगे कैसे करना है? ठीक है? तो जो ये थिंकिंग आती है, जो डिजायर आती है, वो हमारे अंदर इसी कंपैरिजन की वजह से आती है, या हम इंस्पिरेशन लेते हैं मूवीज से, एनवायरनमेंट से, जिससे हमारे लेवल का कोई लेना देना नहीं कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। When we do the session about goal setting, we first tell the student to know, to write their your weakness, your strength, your skills, then we tell them to set your goal. हम अपना गोल कब सेट कर सकते हैं? जब हमको अपना वीकनेस पता हो, अपनी स्ट्रेंथ पता हो, अपनी स्किल पता हो, उसके बाद अपना गोल सेट कर सकते हैं। बट हम गोल सेट कैसे करते हैं? जो अच्छा लगता है। अब इसमें माइंड का फंक्शन आता है। फीलिंग, अभी मैं विलिंगनेस पे था, तो फीलिंग को थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। इमोशन, माइंड एक जबरदस्त फंक्शन है, ये कार्य करता है मजा आना चाहिए, लॉजिक पे नहीं चलता। माइंड लॉजिक पे नहीं चलता। अरे यार कल एग्जाम है, या तुझे पढ़ना चाहिए, फेल हो जाएगा, यार छोड़ डाल। माइंड लॉजिक पे नहीं चलता। लॉजिक इंटेलिजेंस का नाम है इसका। यू हैव फंक्शन इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो, जो सर ने बताया है ना। ईगो भी पता, अहंकार भी बताया उन्होंने, इंटेलिजेंस तो ये अलग है माइंड से। और ये भी हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हमारे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आत्मा के ऊपर है मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके ऊपर है हमारा ग्रॉस बॉडी, जो हमारे 5 तत्व का बना हुआ है। माइंड का जबरदस्त फंक्शन। मन करता क्या है, मन क्या है? ये एक इंटरफेस है। आत्मा को अगर कुछ करना है दुनिया में, तो वो माइंड के थ्रू अपनी बॉडी को एक्टिवेट करता है। हमारी बॉडी न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, वो तकनीक तरह के फंक्शन होते हैं। हमारी 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है उसमें, हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत इफेक्टिव होता है। उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होता है न्यूमेटिक, एयर से। तो हमारी बॉडी एयर से चलती है, न्यूमेटिक है। प्राण, अपान, उदान, 10 प्रकार की वायु हो रही है। मन उसको एक्चुएट करता है, फिर बॉडी हमारी फंक्शन करती है। ठीक है? एनीवे, तो फीलिंग, आपको मजा आना चाहिए। मन कैसे काम करता है? अच्छा लगना चाहिए। और फिर ये नहीं देखता कि मेरे लिए अच्छा है या मेरे बुरा है, मजा आना चाहिए, ऐसे काम करता है। और इंटेलिजेंट कैसे काम करते हैं? सही है गलत है। तो आपका जब दिमाग में सर आवाज आएगी ना, मेरे सही है गलत है, मतलब आपकी इंटेलिजेंट वर्क कर रही है। और जब बोला यार मजा आना चाहिए यार, कल मैच है यार, मैच छक्का मारेगा धोनी यार जो भी प्लेयर है, तो आप लोग नहीं पाते हैं, छोड़ो यार थोड़ा देर मैच देख लेते हैं। तो आप इंटेलिजेंट को साइड करेंगे। तो गीता का एक श्लोक है, 2nd chapter 62 श्लोक। इफ यू रीड, यू कैन सर्च इन इंटरनेट। 2.62 and 6 with these two श्लोकास। इसमें मन कैसे डिरेल होता है अपनी पटरी से, इसमें बताया गया है। When you think about some subject for more than required, and it is beyond your capacity, and it is not as per your need, like you have exam and you are watching, or you want to watch cricket, and आपने बहुत सोचा किसकी बैटिंग है, किसकी बॉलिंग है, बहुत सोच रहे हो उसके बारे में। अगर सोचोगे नहीं, शायद आपको पता ना आज मैच है, तब कोई इच्छा ही नहीं है। आपके आसपास के दोस्त लोग कहीं पे मैच नहीं चल रहा, आवाज नहीं है, छक्का अच्छा होगा, तो आपको इंस्पिरेशन नहीं आएगी मैच देखने में। समझ रहे? कब आएगी? जब आप उस पर ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो अपने कान से सुन रहे हैं, जीत गए, हार गए, शंका, या आप अपने मन में सोच रहे हैं किसकी बैटिंग,
किसकी बोलेंगे, जीतने वाले हैं, हारने वाले हैं। जब आप उस विचार पे ज्यादा मनन करते हो तब आपके अंदर वो इच्छा प्रबल हो जाती है। समझ में आ रहा है? When you think about some subject matter prolonged time, then you have strong desire to get it. And sometimes it goes beyond your restriction point. Like you can do anything wrong to get it. आप उसको प्राप्त करने के लिए कुछ गलत भी कर सकते हैं, इतनी प्रबल डिजायर आ जाएगा। किसी की जान लेना या इसको मार देना या झगड़ा कर लेना, ये सारा सेकंड चैप्टर 62 श्लोक और 63 श्लोक में मेंशन है। इसको एमबीएस में, इवन आईएम्स में एंगर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, इस 2 श्लोक। तो यू कैन गो थ्रू इट। तो ये था फीलिंग। तो हमें, अगर आप आर्मी में हो और पाकिस्तान की सेना है सामने, एंड यू आर द बाउंड्री एंड दे केम टू फाइट, एंड यू से दैट आई डोंट हैव मूड टुडे, मेरा मन नहीं है आज। पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे? हो सर, बहुत अच्छा सर, कल आते हैं, या बता देना कब मूड है, मैसेज कर देना, हम आ जाएंगे। ऐसा होगा क्या? सो रियल लाइफ में क्या होता है? जो जरूरत है वो करते हैं या जो अच्छा लगता है वो? जरूरत, बताइए। जरूरत। लेकिन आपको सिनेमा में, एडवर्टाइजमेंट में सिखाया जाता है जो मन को अच्छा लगे वो करो। हमारे युवाओं को बर्बाद किया इसी सोच में, जो अच्छा लगे वो करो। करना क्या चाहिए? तो करते क्या है? अच्छा जो सही है, जो जरूरत है। एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। और यूथ को बड़ा अच्छा, जस्ट डू इट। इज इट नॉट प्रैक्टिकल? जस्ट डू इट। यू आर इन बस और आपको 2 नंबर लगा है, जस्ट डू इट नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं। आप समझ रहे हैं? तो स्लोगन दे दी जाती है ना, बट स्लोगन पे हम दिमाग लगाते नहीं, मन को अच्छा लगता है, चलो भाई। लॉजिक, sane human being is expected to apply logic. We are rational, we are logical, we are not animal. Animal go for basic instinct, खाना है, सोना है, but we are not expected to do that. So feeling and thinking is little bit easy. For example, आपने मुझे देखा, मैं आया, बहुत लोगों के बीच में बहुत ज्यादा विचार होंगे, ये पुरानी परसेप्शन होती है। हम इसके आगे विचार करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने 11:30, we started at 11:30, sorry 11:30, I will take at least 45 minutes. So किसी का विचार कुछ होगा, अभी तक का अनुभव होगा, साधु बोलेंगे, लाल कपड़े बोलेंगे, वो में विचार करता होना। किसी ने शायद कोई इस्कॉन के बारे में जानता होगा, बड़ा अच्छा कुछ बोलेगा, है ना? तो आपके अंदर थिंकिंग का कुछ पैटर्न बना हुआ है, अपनी पूर्वाग्रह, मतलब योर परसेप्शन, प्रीवियस परसेप्शन are giving you current thinking, present thinking. So controlling the thinking means you just not to get affected by previous perceptions, and you choose it, apply logic. What is actually the situation? For example, what is your name? आलोक। आपका नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप के बारे में आलोक ने किसी से कुछ सुना, और जब भी वो आलोक को देखेगा, अरे ये तो ऐसा है, अच्छा बुरा जो भी, अच्छा सुनेगा बुरा सुनेगा, बट थिंकिंग कैसा होना चाहिए? ये मेरे को तो नहीं पता, मैं तो किसी और से सुना, जो सही भी हो सकता है। जब तक मैं उसके साथ अपना एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मुझे कैसे पता लगता है वो सही है गलत है? तो ये जो मैंने कन्वर्सेशन किया अपने अंदर, ये थिंकिंग को सही करने का तरीका है। ये सिर्फ इसके रिगार्डिंग नहीं है, पढ़ाई के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, मुझे क्या करना है, हर चीज में आपको कुछ थिंकिंग आती है। आप रूम में आते हैं, टीचर को देखते हैं, टीचर कुछ पढ़ाता है, आपको कुछ ना कुछ विचार आते हैं, उसको थिंकिंग बोलते हैं। उस थिंकिंग को अभी वो ऑटोमेटेड जॉब में, वो किस जॉब में अभी कुछ भी विचार आ जाता है, आप कुछ प्लान नहीं करते। पर कंट्रोल का मतलब ये तीनों चीजें प्लान है, कंट्रोल है। तो सबसे पहले कंट्रोल क्या होगा? थिंकिंग, उसके बाद बाकी। कुछ प्रैक्टिकल है, समझ में आ रहा है? इज इट प्रैक्टिकल फॉर यू स्टूडेंट्स? ओके।
सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीन जगह तो उसको और था एलेबोरेट अगर हम करें तो थिंकिंग चार तरीके की हो सकती है। जो राइट थिंकिंग है, जनरेटिव थिंकिंग, प्रोएक्टिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड सिलेक्टिव थिंकिंग। जनरेटिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कम अप विद आइडियाज, न्यू आइडियाज। जैसे कि मैंने बताया, राइट नाउ लाइक बचपन से जो हम अभी तक बड़े हुए हैं, ये ऑटो पायलट जो है, मतलब हमने कुछ प्लान नहीं किया, जो हो रहा है वहीं से हमको विचार आ रहा है। या जैसे छोटा बच्चा रोता है, जब रोता है तो सब बच्चे जो उसको बड़े लोग चुप कराते हैं, बेटा चुप कर जा, ओ लो दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं उसको पता लगे जब मैं रोऊंगा तो सब लोग मेरे आगे पीछे भागेंगे। वो समझ गया कि अगर मैं रोऊंगा तो सब लोग मेरी सुनेंगे, वो उसके थिंकिंग पैटर्न उसके अंदर ऐड हो गया। तो कई बार देखो कि बच्चे कई बार कुछ बता मम्मी देखती है नकली रो रहा है, पता लगता है। तो ये ऑटो पायलट होगा, ये थिंकिंग आपने प्लान या नहीं कि आसपास जो हो रहा है आपके, या कोई व्यक्ति आपको किसी बात पे डांट रहा है तो आप बचते हो, वो चीज मैं ना बोलूं, झूठ बोल दूं, अगर मेरे कम नंबर है मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी। या इमेज को बढ़ाने के लिए, इमेज गिरे ना उसको बचाने के लिए हम सच झूठ बोलने लगते हैं। तो ये थिंकिंग जो पैटर्न है हमारा, ये अपने आप बना है, ये हमने प्लान नहीं किया। क्लियर? जब लर्निंग हम करते हैं, जब वर्कशॉप करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या सोचना चाहिए। ठीक है? तो जनरेटिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज और आइडियाज, न्यू आइडियाज, क्योंकि आइडियाज न्यू ही होते जरूर। तो ये इसको बोलते हैं जनरेटिव थिंकिंग, आपको जनरेट कर रहे हैं। प्रोएक्टिव थिंकिंग, ऑटो पायलट जो नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि आप क्लास में आ रहे हैं, कुछ लर्निंग को मिलेगा, तो प्रोएक्टिव होगा, शायद अपने साथ मोबाइल लेके आए नोट्स बनाने के लिए, या पेन लेके आए, कुछ साथ जाने को मिल सकता है। या आपके एग्जाम है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद ही पढ़े। जैसे इंजीनियर की एक आदत होती है, जब एग्जाम आता है उससे पहले पढ़ता है, डेली नहीं पढ़ता। बट अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली पढ़ते हैं। आज कॉलेज में पढ़ाई हुई 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आपने रिवीजन कर लिया, देन यू आर डन, आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में। तो प्रोएक्टिव मतलब पहले से तैयार, पहले से सोच के रखना कि मैं जहां जा रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, उसके क्या तैयारी मुझे करनी है। एनालिटिकल मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग टू मेक यूज ऑफ आइडियाज, आपके पास आइडियाज है, उनको कैसे यूज करना है, ये एक थिंकिंग है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल, एनालाइज करना। और है सेलेक्टिव, एक दिन में एक व्यक्ति को कितने विचार आते हैं? एनी आइडिया? 10,000. हाउ मेनी आइडियाज, थॉट्स कम टू योर माइंड इन वन डे? 10,000. 10,000. व्हाट देन? 10,000. मिलियन? नो, रॉन्ग। 10,000. 10,000 बोलो. 10,000. हाँ? इन 5 minutes, रॉन्ग। 10,000. 10,000. बोलो. You are 10,000 बोलो. free time. Okay. बोलो 10,000. Actually, it is just one research. It is less than 1 lakh. It is less than 1 lakh. अच्छा. And like अगर कुछ बैठे हैं आप, घर का कुछ याद, स्कूल का, कॉलेज का, मूवीज का, ऐसे विचार you come to know. Your brain is bombarding with the ideas. Selective thinking, what it does, you select what is required. Now, that is selective thinking. Generally, if you don't plan, if you don't have schedule, then mind give you schedule. अगर आप प्लान नहीं करते तो माइंड आपको अपना प्लान देता है, जो कि अनप्लान होता है। सेलेक्टिव थिंकिंग क्या करता है कि जो भी विचार है उसमें से आपके लिए रिक्वायर्ड अभी क्या है कि इस पे फोकस करना है, वो काम करती है सेलेक्टिव थिंकिंग। और अगर ये आप इस पे फोकस करें तो आपका इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बच जाएगा, इतना ज्यादा ईज हो जाएगा आपको कि बता नहीं सकता कि सेलेक्ट करना है। इतने विचार आ रहे हैं, सारे विचार के लिए जरूरत नहीं है। आई शुड फोकस व्हाट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, आपका अभी शेड्यूल बना है कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है? उसमें यू मे हैव लाइक कम अप विद मेनी आइडियाज टू प्ले फुटबॉल, टू वॉच टीवी, टू गो फॉर वॉक, टू कॉल समवन। आता रहेगा, मन
मन नहीं दुखता है, पागल की तरह, जैसे कुत्ता ना भौंकता है, वाह 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 वाह। इट इज लाइक ए सेल्समैन जो गंजे को कंगी बेच सकता है। It will always bombard with new and new ideas, and you cannot tolerate it sometimes. या ठीक है जो बोल रहा कर देता हूँ। To control it, first you should practice meditation also. We will teach in further sessions. But you have to come with the ideas. You have to learn which idea is good for me and which are not good for me. Otherwise, you will become a victim of your uncontrolled mind. Feeling and willingness. We react to internal reality, not real environment. Like sir said, one student said that our desires come from environment. And environment also what we see as per our previous perception. As per our previous perception, जिस तरह के हमारे विचार है, पुराने अनुभव है, उस तरह से एनवायरनमेंट को देखते हैं। जैसे हम कॉलेज में जब गए थे स्कूल से, तो हम कहते कॉलेज में आके बड़ा मजा आया, वो अच्छा लगा। खोले हैं स्कूल में तो ड्रेस पहननी पड़ती थी, कॉलेज में कोई ड्रेस नहीं पहनती, मजा आएगा। लेकिन जब बुक उठाई मोटी मोटी सॉन्ग टॉन्ग ये यार इतना भी अच्छा नहीं था। तो हमारी जो हमने जो सुना था कॉलेज के बारे में, कॉलेज में ऐसा होगा, कॉलेज में वैसा होगा, ये जो परसेप्शन था उसके साथ हम रिएक्ट करते थे। कॉलेज में मतलब पढ़ने के लिए जाने की नहीं सोच रहे थे, कुछ और ही करने जा रहे थे कॉलेज में, जबकि मेन पर्पस हमारा पढ़ाई होता है। और अभी के लिए प्लेसमेंट में बड़ा पर्पस है कि किस कॉलेज में प्लेसमेंट कितने जा रही है। और so we react to internal reality, not real environment. So when we want to understand it rightly, we have to use that method, right thinking. कि मैं कहीं अपने पुराने विचारों से प्रभावित तो नहीं होता। ये जो मैंने प्रदीप और आलोक के बारे में एग्जाम्पल दिया। What is really going on when other people make you feel cramped, stressed, angry? तो कंट्रोल करने का मतलब ये कि किसी ने आपको स्ट्रेस दे दिया, किसी ने आपको ये जता दिया कि तुम कितने बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, है ना? ऐसा होता है। अगर ग्रुप होता है तो बेकार आदमी, तो व्यक्ति सोचता है तू बेकार हो, घर में भी जो बेकार बोलते हैं, हमें बेकार बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं। ये हमारा हम फंस गए, फीलिंग में फंस गए, एंग्री। तो जब आप इमोशन में आते हो, किसी भी खुशी, दुख, किसी भी तरह की होता है, तो आपका इंटेलिजेंस कम काम करता है। When you get affected by emotion, your intelligent work 10%, 5%. So this is a golden principle. Never take your decisions when you are in emotion. सुख में, दुख में, है ना, डिस्ट्रेस में, स्ट्रेस में आपको डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन कब लेना है? मैं थोड़ा विचार करके बताऊंगा, थोड़ा टाइम ले लो। तो ये गुस्से में होते हैं, आज से मैं कसम खाता हूँ, तो वो कसम में दिमाग यूज नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, दशरथ महाराज कैकेयी को बोले कि आप कुछ वर मांगो। कैकेयी बोले कि अभी तो कुछ नहीं चाहिए। तो दशरथ महाराज बोले कि नहीं, कुछ मांगो, बोले अभी नहीं, बाद में मांगो। तो दशरथ जी इमोशन में, जिसके कैकेयी ने अपनी जान बचाई, इमोशन में, प्रेम में बोले ठीक है, जब मांगोगे तो दूंगा। उसी के लिए पूरा रामायण हो। अगर बोलते जो मांगना है बस आज के आज मांगो, तो शायद रामायण का इतना बड़ा आपको सुनने को ना मिलता। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि when you want to take decision, please come out of emotion and use your intelligence. And when you are in emotion, you cannot use your intelligence. Emotion में language भी बदल जाती है गुस्से में। How emotion get linked in your nervous system? गुस्से में आपके बॉडी पॉइजन बनाती है, रिसर्च है। इतना पॉइजन बनाती है गुस्से में कि गिनी पिग मर सकता है। तो एग्जांपल के लिए जो टेस्टिंग के लिए जो पिग रखा है। How emotion get linked in your nervous system so you can be alert for when things are getting wired up which may not be good for you. तो कई बार क्या होता है कि इमोशन में जब हम आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हमको थोड़ा कभी होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो हमको पता लग गया कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है,
उस केस में क्या करना चाहिए हमको? उस सिचुएशन से बैक ले लेना चाहिए हमको डीलिंग में, डिस्कशन में, क्योंकि उसके बाद हम फटेंगे। तो कई सिचुएशन में हम कुछ ही डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है। वी आर एबल टू डिस्कस वेरी लेस, बट आई एम डिस्कसिंग द पॉइंट्स which you will be able to understand that it is really practical for you. So now, ये सब mind, intelligence, ego, what it affect you, how it affect you. When you are having some, you like, you got some habit. Habit दो तरह की होती है, एक शरीर की, एक होती है मन की। एक स्टाइल ऑफ, एक पैटर्न होता है एक्टिविटी को करने का या फिर सोचने का, उसको बोलते हैं हैबिट। तो ये जो मॉडर्न सिनेरियो है, हैबिट कैसे डलती है, कैसे हैबिट आपके अंदर आती है, ये वो मॉडल। फिर मैं वैदिक मॉडल बताऊंगा और कैसे बताऊंगा कि वो कितना सुपीरियर है, उसमें कुछ एडवांस चीजें भी हैं। सो सबसे पहले है ट्रिगर। पहले नहीं, ये सर्कल एक्चुअली, ठीक है। आपको भी आदत है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के लिए अभी फर्स्ट ईयर में हैं आप सब लोग, तो उम्मीद करता हूं आप लोग स्मोकिंग नहीं करते होंगे, तो स्मोकिंग की आदत लेके चलते हैं। अब मैं मानता हूं कि आप लोग इसको बुरा मानते हो या फिर अल्कोहल, तो ये एक्ट है रूटीन, द एक्चुअल एक्ट ऑफ कंप्रोमाइजिंग द हैबिट, मतलब उस एक्ट को करना, शराब पीना या सिगरेट पीना। ये ट्रिगर, थिंग्स, इंसिडेंट्स व्हिच इंपल्स टू कंटिन्यू द हैबिट। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन, एनवायरनमेंट जो हमको उस आदत को करने के लिए इंस्पायर करती है, मजबूर करती है, और वो है रिवार्ड। उस कार्य को करने में जो आपको आनंद आता है, जो फल मिलता है, वो हो गया रिवार्ड। ये तीन चीजें। सिगरेट के अगर संदर्भ में लेके चले, कोई टॉक अबाउट सिगरेट स्मोकिंग, योर फ्रेंड सर्कल, यार मेरे दोस्त ने तो चलो पीते हैं, मजा आएगा, सारी टेंशन खत्म, सब टेंशन खत्म हो जाएगी, एग्जाम की, इसकी उसकी, सारी टेंशन खत्म। ऐसा होता है, फ्रेंड लोग कसम भी खिलाते, मुझे मेरी कसम। तो ये ट्रिगर हो गए, और फिर आपने इसको पी लिया, सिगरेट पे अल्कोहल, फिर आपको थोड़ा जो भी अच्छा बुरा आनंद आया, तो ये रिवार्ड है। तो इसको अगर हैबिट को तोड़ना है, इसके हिसाब से आप ट्रिगर को हटा दीजिए, तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड है। इसको हैबिट को, इस सर्कल में से एक चीज हटानी पड़ेगी। इस सर्कल में से एक चीज हटाएंगे तो आपका वो सर्कल टूट जाएगा, हैबिट का। वैदिक मॉडल, तीन चीजें तो दिख रही आपको, और दो चीजें हो सकती। सिगरेट या शराब के बारे में बताया और मैं मान गया, इसका मतलब मेरे पास दिमाग नहीं था, इग्नोरेंस। मेरा भी नॉलेज होना चाहिए, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं घर से अच्छे संस्कार थे हमारे, तो पंजाब में उड़ता पंजाब होता है, नशा बहुत ज्यादा होता है, अफीम, चरस, सब। और हमारी क्लास में तो लड़के थे कि वो रोज करते थे, लेकिन हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा। और हम लोकल में थे, हॉस्टल में नहीं रहते, इसलिए ये भी कारण था। बट आपके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज जो है, वो भी बहुत बड़ा कारण बनती है गलत चीजों से बचने का। अगर आप राइट नॉलेज लेते हैं, अपने इंटेलिजेंस को शार्प करते हैं, तो आप इग्नोरेंस से बच सकते हैं और ट्रिगर से आराम से बच सकते हैं। आप किसी पार्टी में जाते हैं, सब पी रहे हैं, लेकिन जो नहीं पीता नहीं पीता। तो क्यों? क्योंकि आप उस चीज को फिल्टर करके देखते हैं कि सही क्या गलत है। तो ये इग्नोरेंस ट्रेडिशनल मॉडल में ऐड नहीं है, ये वैदिक मॉडल में, कि आपकी जो गलत आदत है उसका बहुत बड़ा कारण है अज्ञान, ठीक है। और आपकी आदत कंटिन्यू होती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्लिविटी, मतलब जब आप कोई चीज करते हैं उसका एक इंटरनल इंप्रेशन पड़ जाता है उसको करने का। मतलब वो कार्य खत्म हो गया, मूवी देखी, लेकिन आपको सोचा कि मूवी की सीन याद आता है, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो शरीर के अलावा मन से भी करते हैं, और इसके इंप्रेशन हमारे अंदर छप जाते हैं। आप जब गुलाब जामुन को देखेंगे दोबारा, तो गुलाब जामुन पहले खाए तो आपको मुंह में पानी आने लगेगा,
क्योंकि वो प्रोक्लिविटी आपके अंदर, उसी तरह आप सिगरेट को देखें, किसी भी चीज को देखें, उसकी प्रोक्लिविटी अगली बार वो चीज करने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने इसको एक बार फिजिकली कर लिया। अगर आपने नहीं किया उस एक्ट को तो प्रोक्लिविटी उतनी ज्यादा, और जितनी बार वो उस एक्ट को करेंगे, जो भी गलत एक्ट, आपकी प्रोक्लिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये इग्नोरेंस को दूर करने के लिए आपको राइट नॉलेज लेना पड़ेगा, और ट्रिगर को हटाने के लिए आपको एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर वर्कशॉप होता है, प्रॉपर क्लासेस होती है, ये एक दिन में नहीं हो सकता। जस्ट मैंने ये आपको आइडिया दिया कि क्या हमारे पास नॉलेज है। हमारी वर्कशॉप रेगुलर होती है, हमारा सामने सेंटर भी है, करो सर या सर से कोऑर्डिनेट करके प्रयास करेंगे हम रेगुलर इस तरह के सेशंस करें, जिससे आपको जो भी, और ये सेकंड इसमें सबसे बड़ा स्टेप है, जो व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, क्योंकि आसान नहीं है, जो मजे चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, मतलब जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं वही इसको करना चाहते हैं। ये वॉलंटियर, मतलब आप वॉलंटियर इसको करेंगे, इसको हम फोर्स नहीं कर सकते। ये सब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ, और इसमें हम हर लेवल पे वर्कशॉप होती है किस कैसे इसको करते हैं। तो जब अपने अंदर बदलाव लाते हैं, जो एनवायरनमेंट मैंने बोला, एनवायरनमेंट, तो जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, जैसे आप इस कॉलेज में आए, आप घर पे थे, तो आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव आएगा। आपका मैथ्स का टाइमिंग फिक्स है, आपका उठने का टाइम फिक्स है, कॉलेज आने का टाइम फिक्स हो जाएगा। अभी तो 2-3 कुछ दिन हुए, पर आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगी। ये एनवायरनमेंट जो चेंज लाता है, ये बाहरी होते हैं, आंतरिक नहीं होते। आंतरिक चेंज लाने के लिए सेकंड चेंज है बिहेवियर। जब आपका बिहेवियर भी चेंज होने लग जाता है, ये हाई लेवल का चेंज है। उससे हाई लेवल का चेंज है जब आपकी कैपेबिलिटी, जिस एनवायरनमेंट में उस हिसाब से अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा लिया। बहुत लोग हैं जो कॉलेज में हैं, लेकिन जैसे आपके हर क्लास में 3 तरह के लोग होंगे, नंबर 1, एक मिडल, एक बैक। आप जिसका एसोसिएशन करेंगे वैसा बन सकते हैं। अगर आप अच्छे लोगों से संग करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। नहीं तो आप बस एनवायरनमेंट में है, बस है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है। तो कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। कैपेबिलिटी के बाद है वैल्यूज एंड बिलीव्स, और सबसे लास्ट है आइडेंटिटी। ये जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट। अगर आप आपको बहुत सारी बुनियादों से बचा के रख सकता है, अगर आप आके बंद करके सोचें कि भाई मैं क्यों आ गया, मैं स्टूडेंट। जो भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपकी एक आइडेंटिटी जो आपको इससे बचा सकती है, वो क्या है? आई एम ए स्टूडेंट, व्हाट आई सपोज्ड टू डू? लाइक वी स्पिरिचुअल पर्सन, वी थिंक आई एम ए सोल, व्हाई आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दीस रॉन्ग थिंग्स? दिस इज माय आइडेंटिटी। सो योर आइडेंटिटी इज स्टूडेंट राइट नाउ। So this level of change, if you come to this level, you are like, you will be like a क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कमल का जो पत्ता होता है वो पानी के अंदर रहता है लेकिन गीला नहीं होता। This level of change, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एनवायरनमेंट चेंज होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट ये चीजें मैं हालांकि बता चुका हूँ। डू बी है, हमको कहा जाता है ये कर लो फिर खुश हो जाओगे, फिर तुम है ये चीज कर सकते। लर्न करो स्कूल में, फिर कुछ बन जाओ, फिर जीवन में कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करना। पेरेंट्स वर्क हार्ड, बी सक्सेसफुल, हैव एनीथिंग यू वांट। 10वीं कर ले बेटा, फिर 12वीं कर ले। नहीं, आप अभी खुश रह सकते हैं और खुश रहते हुए चीजें कर सकते हैं। ये वैदिक पर्सपेक्टिव है कि आप अभी हैप्पी रह सकते हैं, अभी सेल्फ कंट्रोल हो सकते हैं, अभी आप खुश रह सकते हैं और खुश रहते हुए चीजों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अभी हमको क्या चला रहा है? अभी तुम बस पागलों की तरह बस करो, वर्क हार्ड, और फिर तुम कभी सक्सेसफुल हो जाओगे। और होता क्या है, उस समय तक आता ही नहीं। 12वीं कर ली, फिर ग्रेजुएट हो गए, फिर नौकरी करने लगे, नौकरी में कंपटीशन है। हैप्पी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अभी वो इंटरनल स्टेट को अभी चेंज कर सकते हैं। सो मैं टाइम कम लेना चाहूँगा, कम समय में जितना ज़्यादा दे पाऊँ, है ना। और एक समय में इतना दीजिए कि आप उस पर वर्कआउट कर पाए। थोड़ा गाय जुगाली करती है, ऐसे जुगाली करते हैं, तो जो थॉट प्रोसेस दिया है तो उसको आप उसको एसिमुलेट कर पाए, इसलिए हम आपको टाइम देते हैं। ये फीडबैक फॉर्म है, आप अपने मोबाइल से स्कैनर खोलें
उसको क्लिक करें और उसमें आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, अपना डाटा भर दीजिए और जो भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके लिए भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर कोई नहीं कर पा तो पास में आके या लैपटॉप में आके भी स्कैन कर सकता है, अगर वहाँ से नहीं कर पा तो एनी क्वेश्चन, किसी कोई प्रश्न, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? फोन कमेंट कैसा लगा? नहीं लिखा है कोई आवाज नहीं। कितने लोग चाहेंगे कि ऐसी क्लासेस हम रेगुलर कर सकते हैं? अगर आप वीकली करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप जरूर इस फीडबैक फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे आके बस तो ये विशाल सर है, इनका कॉपी पेन भी होगा, जो इसमें ना कर सकें आप इनको नाम नंबर लिखा सकते हैं। हमारी क्लासेस जब भी होंगी, चाहे तो कॉलेज के अंदर हो चाहे जस्ट गेट के बाहर हमारा सेंटर है, वहाँ पे भी हो सकती है। हमारा यहाँ पे छोटा सेंटर है स्कूल का, वहाँ पे भी आ सकते हैं। सबने स्कैन कर लिया? और किसी कोई प्रश्न है तो मैं 2 मिनट के लिए ऑफिशियली मैं क्लास को एंड